دیکھیں یہی بالکل قادری صاحب نے ٹھیک بات کی. دیکھیں جو لوگ جب ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم حالت جنگ میں ہیں، دوسری طرف جب ڈرونز ہماری خود مختاری کو اور ہماری سرحدوں کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہیلی کاپٹرز آتے ہیں ہمارے یہاں کے آپریشن کر جاتے ہیں، نیول بیس پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بات بھی صرف مذمتی بیانات. آپ مجھے بتائیں یہ لوگ دیکھیں پرابلم کیا ہے، یہ جو قوم کو اور اس کے اوپر پھر قوم کو خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو کوئی آنکھیں اول تو ہماری حیثیت نہیں ہے امریکہ کو جو ہے کوئی جواب دینے کی ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی، لیکن اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو اصل جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اثاثے، ان کی کرپشن کا پیسہ جو اکاؤنٹس بینک باہر پڑے سب سے پہلے وہ سیز ہوں گے. اس لیے یہ قوم کے ساتھ جو منافقت کی جا رہی ہے 3 سال سے مسلسل، اور آپ کو یاد ہے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اگر یہ واقعی مخلص ہیں. دیکھیں زعیم قادری صاحب جیسے، فیصل رضا حبدی صاحب جیسے ہمارے جیسے یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہوں نے یہی رہنا جینا مرنا. آج ہم سب کو پوری قوم کو مل کے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ آخر یہ کمپرومائز لیڈرشپ کے جو قوم کو گمراہ کر رہی ہے، جس نے قوم کو قومی مفاد کو بیچ کے اپنی کرسی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے قومی مفاد کو بیچ کے آج حالات اس نیچ پہ لے آئے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر یہ قادری صاحب اس وقت جو حالات ہیں، مورال ڈاؤن ہے، خود آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں شرازہ بکھر رہا ہے. کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے کیا تمام پیسہ واپس نہیں لینا چاہیے پاکستان میں تاکہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو فیل ہو کہ ہمارے لیڈر آگے بڑھ کر پاکستان میں چیزیں واپس لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو اگر یہ فگرز دوں تو اس کے لیے آپ ایک سیپریٹ پروگرام کر لیں کہ جتنے بھی ایکسٹینسو جو اماؤنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب نے وہاں کاروبار کیا ہے پچھلے 1.5 سال میں تقریباً 35 کروڑ روپے کے قریب ٹرانسفر کیا ہے باہر کے ملک سے پاکستان. نہیں میں میاں صاحب کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ غلط مت سمجھے، میں تو جنرل بات کر رہی ہوں کہ کیا اس وقت لے کے نہیں، اگر تمام لیڈرز جو لے آئے اگر پیسہ واپس تو اس سے کانفیڈنس بڑھے گا کہ نہیں عوام کا؟ یہ سوال ہے میرا. یقیناً بڑھے گا، اس میں تو کوئی دو آرہ نہیں ہے، لیکن بھی کانفیڈنس بڑھانے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ جب آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تب ہوتی ہیں کہ جب آپ ملکی پالیسیز بناتے ہیں. بتائے گا عمر چیمہ صاحب، ملک کی خاطر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر آپ کو بالکل یونائٹڈ فرنٹ پہ کہا جائے اکھٹے ہو جائیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم ہر اس فورس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جو پاکستان حقیقت میں پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کام کرنا چاہتی ہو، لیکن اس کے لیے پہلے اپنی مثال پیش کرنا ہوگی. جیسے ابھی خود قادری صاحب نے کہا کہ اپنے احساس سے سب کچھ باہر رکھا ہے، حکومت میں بیٹھ کے صرف مذمتی بیانات سے کام نہیں چلے گا. عمل کریں ہم ہر بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ آج ضرورت ہے ہوم گرون نیشنل پالیسی کی، ورنہ ہمارے جو حالات جس طرح ہمیں نیش میں لے آئے یہ لوگ ہمیں مروا دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں قادری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنا ایک سوٹ کیس لے کے باہر بھاگ جانا ہے. یقیناً ہم تو اس پہ بالکل تیار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو مل کے ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کمپرومائز نہ ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹرانگ پالیسی بنائے تاکہ ملکی معاملات کو لے کے آگے چلا جائے. ہم نے یہی بات ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے. سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے ملکی مفاد میں اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ملک دشمن عناصر یکجا ہو چکے ہیں. بکھرے ہوئے شرازے کو سمیٹنے والے بھی ہمارے اندر ہی ہیں اور ہم نے یہ بات ہائی لائٹ کرنی ہے. وقفہ لیں گے مگر آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز. آج پورا دن ہم نے پاکستان کے جوانوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ گزارا. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ ہم کون سے پاکستان کو سلیکٹ کریں گے؟ اس پاکستان کو جو کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے چنا یا وہ جو دہشت گرد ہمارے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ڈو کیپ واچنگ. ہم وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے. ابھی وقفہ لیں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. 14 اگست 1947 کو وہ خواب پورا ہوا جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک طویل جد و جہد کی اور بے شمار قربانیاں دی. مگر یہ اس خواب کا ایک مرحلہ تھا، تکمیل پاکستان کا مرحلہ. ستم ظریفی یہ ہوئی کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ہمارے دشمنوں نے پاک وطن کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں.
मगर इस बहादुर कौम ने हर साजिश का मर्दाना वार मुकाबला किया। पाकिस्तान बने अभी 1 साल ही हुआ था कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर वार कर दिया, मगर हमारी फौज और कौम दोनों ने मिलकर बहुत ही बहादुरी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। उसके बाद 1965 में एक बार फिर दुश्मन ने बुज़दिलों की तरह हम पर छुप कर वार करने की कोशिश की, मगर इस मुत्तहिद कौम ने अपनी फौज के साथ मिलकर दुश्मन को मार भगाया। इसी तरह 1971 में भी हमारे दुश्मनों ने साजिश की और पाकिस्तान का एक बाजू हमसे जुदा कर दिया, मगर इस कौम ने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर जिद्दोजहद की और मुल्क के दिफा को एटमी ताकत से नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इस कौम ने 63 साल में बहुत से नशेबो फराज देखे हैं, कभी सियासतदानों और जर्नैलों की चपकलिश, कभी आमरीत, कभी जमहूरियत, कभी मुआशी बहरान। आज हम एक मुश्किल महाज पर मसरूफ़ जंग है, मगर मुल्क में इस जंग के मुतालिक कन्फ्यूजन नजर आ रही है। कुछ नाक़दीन के ख्याल में ये हमारी जंग ही नहीं है और कुछ कहते हैं कि ये हमारी बका की जंग है और इससे हमने मिलकर ही लड़ना है। मैं अपनी प्रोफेशनलिज्म देखता हूँ और उनकी देखता हूँ तो मुझे ये फ़ख्र है कि हमारे जो आजकल के लड़के हैं उनमें प्रोफेशनलिज्म कम से कम हमारी जैसा है या हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसे वेपन्स उड़ा रहे हैं जिसके बारे में हम ख्वाब देखते थे। ये बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे ऑपरेशंस के लिए हमें कोई और मजबूर करता है और वजह से फिर लोगों को शक होता है, शुबा होता है और वो तमाम लोग जो इस कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के अपनी स्पेस लेते हैं उनको एक मौका मिलता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर जब तक मरने वाले पाकिस्तान के मुहाफिज हों तो हमें अपनी सिमत का तयन करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सच तो ये है कि आज जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है, तो एक बार फिर ज़रूरत आन पड़ी है कि हम सब मुत्तहिद होकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करें, अपने बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाएं और एक बार फिर इस पाकिस्तान को कायद के ख्वाब के मुताबिक ताबीर करें। हमें दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें कायद और इकबाल का पाकिस्तान चाहिए। यही सवाल लेकर मैं आज पाकिस्तान की गलियों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों के पास आन पहुंची हूँ। उनके जवाबों ने न सिर्फ मुझे हैरान कर दिया बल्कि एक नया हौसला भी दिया। आइए देखते हैं ये नौजवान क्या कहते हैं। पाकिस्तान को कैसा होना चाहिए तुम्हारी नजर? पाकिस्तान को अच्छा होना चाहिए क्योंकि हर तरफ देखें धमाके हो रहे हैं, वारदातें हो रही हैं और कई बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बड़े होके क्या बनना? मैं फौजी बनूंगी। फौजी बनोगे? फौजी बन के क्या करोगे? खिदमत करूंगा दुनिया की। तुम दहशतगर्दों से कुछ कहना चाहोगे ये पाकिस्तान को छोड़ दें ये लोग? हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते, सिर्फ ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि इसका बचाव कर सकें। यही जानने के लिए कि पाकिस्तान की आने वाली नस्ल पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, क्या खदशात हैं और क्या तवक्कुआत हैं, हम दोबारा एक और स्कूल के बाहर मौजूद है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप? तो बहुत गर्मी है, बहुत रश है, धमाके भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं पता है कल एक बच्चा जो हमारा था उसको दफनाया, उसने जान दे दी पाकिस्तान। इंशाल्लाह मैं भी दूंगा। तुम्हें लंबी उम्र से तो जिंदगी दे। फौजी कौन सा बनोगे, एयरफोर्स वाले या आर्मी वाले या नेवी वाले? नेवी वाला। नेवी बन के क्या करोगे नेवी में जाकर? यही जो ये लोग धमाके करते हैं इन्हें मारना चाहिए, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। कैसे खत्म करें बताओ? फौजी बन के कुछ बन के इन्हें खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं ये कौन लोग कर रहे हैं? अमेरिका कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें किसने बताई बात? टीवी में दिखाते हैं। टीवी वाले ये बता रहे हैं। अच्छा, जो भी कर रहा है हम उनको क्या कहें, क्या कैसे उनको भगाएं? फौजी कुछ बन के फौजी बनकर भगा सकते हैं। इन बच्चों का ख्याल ये कि हम फौजी बनकर इस मुल्क को धमाकों से बचा सकते हैं और इन लोगों की पढ़ाई खराब होने से बचा सकते हैं। कुछ और बच्चों से पूछते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? बम धमाके। बम ब्लास्ट। क्यों बम ब्लास्ट कौन करता है? तालिबान। तालिबान करते हैं। क्यों आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं, कभी सोचा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आए हैं। क्या करने क्या है, इनका मकसद क्या है? ये अब देखे ना, ये लोग अपने आप को पैसों से बिकवाते हैं। ये दूसरे मुल्कों के एजेंट है, अमेरिका, इंडिया वगैरह। ये हमारे आगे कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। अब हम नहीं बचाना ना पाकिस्तान को, तुम लोगों ने बचाना है। तुम हमारे बच्चे हो, तुमने बड़े होकर बचाना है। मिलकर बचाएंगे, दहशतगर्दी को खत्म करना है मिलकर। जी जी। हम क्या करें, कुछ प्लान बनाओ, मुझे प्लान बना के बताओ कैसे रोकें। पाकिस्तानी नहीं है जी, दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, गैर मुल्की है। इनको खत्म करने के लिए बस अवेयरनेस होनी चाहिए, लिटरेसी होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अवेयरनेस और लिटरेसी। तुम्हारा क्या ख्याल है, लोगों को पता ही नहीं है दहशतगर्द? जी, उनको नहीं पता ना, वो मतलब समझते हैं, वो उनको बिल्कुल माइंड वॉश करते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं इन बारों में, तो इसलिए वो फंस जाते हैं इन बातों में। तो ये हमारा मुल्क है, हमें अपनी यूनिटी देनी चाहिए,
सब मिल के काम करना चाहिए, गांव में लिटरेसी आनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। दहशतगर्द कौन है? ये हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आज़म ने हमारे लिए कौन सा पाकिस्तान बनाया? ये वाला पाकिस्तान नहीं बनाया था जो आजकल हो रहा है, रियली क्यों? क्योंकि हम सब पार्टीशन हम लोगों ने इसकी वजह से की थी ताकि हम सब यूनाइट होके रहें, लेकिन अब इस तरह नहीं है। सब मिलके हम उसको सही कर सकते हैं। मोहम्मद अहमद, कैसे पाकिस्तान में अमन लाओगे? तुम्हें मैं आइडिया दे दूँ, बता दो इस पाकिस्तान। अमन कैसे लाएंगे कि सब लोग आपस में यूनाइटेड हों, और ये जो है हमारे ऊपर ख्वास हैं जो आजकल के लोग ऊपर खड़े हुए हैं उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं क्या सब लोग? नहीं, मतलब एहतजाज करें और कहें कि भाई हमें पाकिस्तान वापस चाहिए। 1947 की सुबह तक का सफ़र तश्कील पाकिस्तान का सफ़र था, लेकिन अभी तकमील पाकिस्तान का सफ़र बाकी है और सारी कौम ने मिलकर अमन, खुशहाली और तरक्की की इस मंजिल तक पहुँचने की जिद्दोजहद करनी है। मगर इन बच्चों की आवाज़ें एक ही हैं कि इस दहशतगर्द को पाकिस्तान से बाहर निकालो। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है सौक़े खुदाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्र कुशाई। PNS मेहरान पर दहशतगर्दों की बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमारे जिन जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन शोदा को हम आज खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं उन माओं को जिनके जिगर गोशों ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कौम को हयात देने वाली शहीद की माँ की आंख में आंसू तो आते हैं, लेकिन दिल में सब्र और शुक्र के जज्बात और ये इत्मीनान कि बेटे ने जामे शहादत नोश किया है वतन की खातिर। और शहादत से बढ़कर क्या एजाज हो सकता है जो उनके बेटे को मिला है। बेटी की जुदाई का दुख अपनी जगह, मगर शहीद की माँ होने का फख्र उससे भी बढ़कर है। शहीद के वालिद जिनका सीना बेटे को वर्दी में देखकर फख्र से तन जाता था, आज बेटे की शहादत पर भी उनका सर फख्र से बुलंद है। और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि सारी पाकिस्तानी कौम को अपने इन शोदा पर फख्र है। इन शोदा के बारे में देखते हैं इमरान खान की रिपोर्ट। मई की रात को PNS मेहरान पर दहशतगर्दों ने बुज़दिलों की तरह छुपकर हमला किया था, मगर नेवी और रेंजर्स के बहादुर जवानों ने उन दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए उनका बहादुरी से मुकाबला किया। हमारे इन बहादुर जवानों ने वतन के कीमती असासों को बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। आइए अपनी कौम के शोहदा से आपका तारुफ करवाएं। पेशावर के इलाके दानिशाबाद का 26 साला जावेद इकबाल पाकिस्तान नेवी में फायरमैन था। PNS मेहरान पर दहशतगर्दों के हमले के बाद तैयारों पर लगी आग बुझा रहा था कि गोलियों का निशाना बन गया। 5 माह पहले ही शादी के बाद कराची मुंतकिल हुआ था। कारगिल के मैदान में जामे शहादत नोश करने वाले कर्नल शेर खान से वो बहुत मुतासिर था और उसको भी शहीद होने की आरज़ू थी। मेरे बेटे की ख्वाहिश थी अगर मरूं तो शहीद मरूं। मेरा भी ये ख्वाब था कि वो मरे तो नेक राह में मरे। शहादत इसका नसीब था, शहीद हो गया।